हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इस बुक के बारे में जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने एक सिमिलैरिटी नोटिस करी है इस बुक में एंड द माइंड कंट्रोल मेथड बाय सिल्वा। दोनों में एक ही चीज़ लिखी हुई है एंड जब मैंने ये बुक पढ़ी तो आई वॉज काइंड ऑफ अ लिटिल सरप्राइज दैट सभी लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मे बी देयर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, द वे दे टॉक अबाउट इट इज़ डिफरेंट, बट घूम फिर के सब एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एंड दैट इज़ हाउ टू यूज़ योर मेंटल पावर to improve your life and to get things that you want in your life. It could be materialistic things, it could be achievements, it could be peace of mind, whatever that you want to have in your life. So सिल्वा मेथड में हमने देखा था मेंटल स्क्रीन टेक्निक थी उसके अंदर, जिसमें once you go into a relaxed state of mind and then you think about an imaginary mental screen in front of you and whatever that you want to happen in your life, वो सब चीज़ें आप उसके ऊपर imagine करते हो and then you feel kind of relaxed that it is already done and you accept that it is already done and you react in such a way that it has already happened in your life. So that was mental screen method and same ऐसी ही चीज़ मैं इसमें भी देख रही हूँ power of your subconscious mind में, and इसको इन्होंने नाम different दिया है but it is one and the same thing. That was mental screen method and this is mental movie method. इसमें भी सेम वही चीज़ है दैट फर्स्ट यू हैव टू गो इन टू अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, अ ड्राउजी स्टेट ऑफ माइंड, काइंड ऑफ स्टेट व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, या फिर जब हम सो के उठते हैं उस टाइम पे जैसे हम थोड़ा सा ड्राउजी और वैसा फील करते हैं. So when you are in that state, you have to sow seeds of goodness and positivity, and you have to think about थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू हैपन इन योर लाइफ. आप जब उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो तो कहीं ना कहीं यू आर गिविंग अ मैसेज टू योर सबकॉन्शियस माइंड दैट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, एंड व्हेन यू give that message to your subconscious mind, it reacts, and we must not forget that our subconscious mind is somehow connected to the universe, somehow connected to the intelligence, and हम लोग, हमारे अंदर जो एक पावर है जिससे हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं, एंड एवरीथिंग इनसाइड अवर बॉडी, ऑल ऑफ आवर ऑर्गन्स आर वर्किंग through that subconscious mind, through that intelligence. So we have to believe that there is some power apart from our conscious mind, conscious reasoning mind. उसके अलावा भी कुछ तो है जो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो ये सब चीज़ें and it is making them happen. So when we go into that drowsy state of mind, होजे सिल्वा ने उसको अल्फा ब्रेन वेव्स बोला है, एंड इन्होंने बोला है, जोसेफ मर्फी, इन्होंने बोला है दैट यू गो इनटू रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड. सो ओवरऑल मैं जो एक पैटर्न नोट कर रही हूँ इन बुक्स में, वो यही पैटर्न है दैट यू मस्ट कीप योर माइंड calm, you must keep your mind always in a state of gratefulness, state of peace, state of harmony. So guys, if you don't have that much of time to read all these books, I would like to give you a suggestion that इन सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है, and वो ये है that give yourself some time. आप चाहे सुबह उठ के 20 minutes या शाम को 20 minutes go into that relaxed state of mind, meditate for some time, and give an opportunity to your subconscious mind to have new thoughts, to have new ideas, because whatever that we have in our life, it is a reflection of what our subconscious mind has made us to believe that we are, that we can have, that we cannot have. आप जो सजेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, आपकी लाइफ भी वैसे ही चेंज होएगी. So if you want to cultivate new habits, or if you want to have something extraordinary in your life, first you have to give yourself that suggestion that you can actually achieve that thing in your life, because most of the time we are living in that state of consciousness where we don't think that we can do better in our life, that we are not enough to get that one thing that we want in our life. So most of, I think एक पैटर्न है कि हम सभी लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी तो रहती ही है कि मुझे ये नहीं मिल सकता, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ टू गेट दैट इन माई लाइफ. सो फर्स्ट यू हैव टू, आई थिंक, इनफैक्ट मैं भी इसी चीज़ के ऊपर बहुत काम करती हूँ अपने ऊपर, दैट अगर कोई चीज़ लाइफ में चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव दैट यू डिज़र्व दैट थिंग. कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई चीज़ मिल भी जाती है, बट बिकॉज सबकॉन्शियसली वी थिंक दैट वी डोंट डिज़र्व इट, समहाउ वो चीज़ हमसे छिन जाती है, हमसे चली जाती है.
सो आई थिंक सबसे पहले द फर्स्ट ग्राउंड स्टेप ऑफ हैविंग समथिंग इन अवर लाइफ इज़ टू बिलीव दैट वी डिज़र्व दैट थिंग. एंड वो बिलीव चेंज करने के लिए यू हैव टू गो डीप इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड पुट न्यू सीड्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट यू डिज़र्व दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू आर गुड इनफ टू डिज़र्व दैट थिंग. ये ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड इज़ नॉट द रीजनिंग माइंड. अगर आप उसको कोई भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो उसको बिलीव करेगा, बट यू हैव टू गिव दैट इंस्ट्रक्शन इन रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड. आप ऐसे नहीं कर सकते कि कॉन्शियस माइंड भी आपका एक्टिव है, थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, एंड पास्ट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है. एंड उस टाइम पे आप अगर सबकॉन्शियस माइंड को कोई इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो नहीं सुनने वाला है. सो विच इज़ वाई ऑल ऑफ दीज आर टॉकिंग अबाउट गोइंग इन टू दैट alpha state of mind, or meditating, or going into that drowsy state of mind, or programming when you are about to sleep. So all these are methods to just activate your subconscious mind and then give it instruction, because वो तभी सुनेगा जब आप उस स्टेट में हो, जब आप सबकॉन्शियस वाली स्टेट में हो. सो गाइज आई थिंक दैट ये एक पावर है हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को बेटर बना सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट investing that much of time into this idea, into this new way of thinking. So this is what I want to tell you today, कि जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स मैं पढ़ रही हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न वेयर I think that all of these writers are only talking about going into that state of mind and programming a new and better version of yourself. I am working that on myself every day. I am trying to make myself better through these meditations, through self-programming, through giving instructions to my subconscious mind. And you can do that also, because there's no harm in trying, you know. So अगर आपके पास 20 minutes भी है तो आप please go into that state of mind, please meditate, relax your mind, and then put some good ideas into your mind. Good luck to you, much love to you, and happiness to you. Thank you.